Good morning, everybody. My dear guys, I am Clifford Solomon. Today I am going to give a description on the basis of current topics as the International Environment Day. My dear guys, since 1972, when long discussions and summit were held among the nations under United Nations General Assembly, finally in 1972 a day has been decided that to make the aware to the people that what is the role of environment for us. Like if I'm talking about the food, talking about the drinking water, if I'm talking about the breath, because this is our energy by which we all are alive here. In this episode, finally in 1974, it was celebrated as the World International Environment Day. And since 1974, this day has been celebrating as an International Environment Day. But as per the episode of the current affairs, because several questions can be asked before you on the basis of Indian industries from Indian origins, and then you have to go through the international affairs. So first we have to know why it is in news in India. So actually, my dear guys, Indian Navy has started an operation. This is called Blue Water Operations, and Blue Water Operation is completely conducting under green footprint by Indian Navy's armies. Under this episode and operations, completely our government, our corps and different ministry of our nations, not only in India but also all over the world, all are aware, and to make the awareness among the people to celebrate this day, to be updated and to know about what is the merit, what is the distinguished of this day, and why it was completely celebrated in 1974. So since 1974 we have to study the history and background of this day, and currently what is going to happen today. As you know, आज जिस तरह से कोरोना वायरस जो एक पेंडेमिक जो एक डिजीज है, ड्यू टू कोविड-19 all people are closed in the room, all worlds people of the world closed in the room. जैसा कि हम लोगों को पता है कि we all are social animals, हम एक दूसरे के बिना मिले हुए नहीं रह सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए कि ऊपर वाले की क्या मर्जी आ गई कि आज हमें आइसोलेट किया जा रहा है। आज आइसोलेशन का हम शिकार हो चुके हैं। एंड वी नो whenever we have to stay, whenever we have to live on this earth, mean to say we have to be isolated. जो एक संप्रदाय, एक समाज अनेक गतिविधियों के साथ इन्वॉल्व हुआ करता था, आज एक ऐसी समय आ चुकी है कि लोग अपने आप को अकेलापन, आइसोलेट होने में ही पसंद कर रहे हैं, क्वारंटाइन होने में ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी महामारी आ चुकी है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस which ministry has the responsibility in India to celebrate Environment Day, and these types of structure and program which is completely on the basis of environment, climate, how to protect, and which types of awareness must be spread among the people in our country. Which ministry is responsible? Now I am going to discuss. So my dear guys, in India, Environment Day is celebrated under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in India in 1985 in New Delhi. Its headquarters in New Delhi. Now the minister of this ministry is Mr. Prakash Javadekar, and the Minister of the State Babulo Supriyo. Is it okay? My dear guys, you must know about that. This ministry has got an award too. This award is named to be National Film Award for Best Promotional Film. The climate change, the environment, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change got this award also.
Now I am going to discuss about some historical background of Indian Constitution. That which types of provisions, recommendation, which has been accelerated in Indian Constitution to celebrate Environment Day. And whenever we are going through the discussions on the basis of responsibility and accountability, that each and every people must be aware to protect our environment, to give the security to our atmosphere, because in the atmosphere, because in the environment, we are obtaining more than expecting what our nature provides us. So in this scenario, first we have to know, whenever I'm talking about the fourth 5-year plan in India, whenever fourth 5-year plan during 1969 to 74 launched in our country, in that period the Prime Minister of India was Mistress Indira Gandhi ji. Indira Gandhi ji first give the discussion about that how to protect our environment, how to protect our climate, atmosphere, and several forest deforestations which were continued in that period. To make the awareness and to highlight the topics, finally Indira Gandhi decided to give a discussion in the parliament. And finally, after a long discussion, an article has been added in Indian Constitution by 48A, और उसके साथ ही भारत के संविधान में आर्टिकल 48 में ए जोड़ दिया गया. And the articles of Indian Constitution 48A says that all states endeavor to improve Indian forest, climate and environment, and to launch several programs and schemes by which people can be aware about the fruitful results of that interpretations and initiatives. तो भारत में कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट तथा क्लाइमेट फॉरेस्ट को बचाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी जी ने 48A संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को यह कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप प्रयास करें कि देश के जैव विविधता, प्राकृतिक संपदा, वन संरक्षण, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए तथा लोगों को इसकी हमारे लाइफ में क्या आवश्यकता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है भूमिका, उसके बारे में हम अवेयर करें. इज इट ओके? माय डियर गाइस, सम इश्यूज वर आल्सो occurred during 2020 whenever we are going to celebrate this day as World Environment Day. तो जिस तरह से 2020 का हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने जा रहे हैं, इसके साथ कुछ हमारे इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ हैं कि कोविड-19 के तहत लोग एक जगह गैदर नहीं हो सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं. इट मीन टू से वी कांट सेलिब्रेट दिस डे फिजिकली, कोलैबोरेशंस ऑफ द फिजिकल एस्पिरेंट्स, बट वी हैव टू गो थ्रू द वर्चुअल सेलिब्रेशंस on the basis of conference, on the basis of meeting. Several programs can be held on the basis of internet services we can also get and provide. So these are interpretations. That's why we can say virtual celebrations of the World Environment Day with focus on urban forest. तो अभी हमारा 2020 का जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्चुअल सेलिब्रेशन के साथ साथ जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर जो फोकस दिया जा रहा है, वो फोकस दिया है अर्बन फॉरेस्ट का, कि शहरों में वनोत्पादन कैसे किया जाए. एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हैज़ बीन बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5th June every year since 1974. दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन योर माइंड. तो 72 में इसके डिसाइड हो जाती है कि एक दिन हम स्वेच्छा से एक डिसाइड करते हैं कि उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय इन्वायरमेंट डे मनाएंगे, और फाइनली 5 जून 1974 ईस्वी को विश्व में इन्वायरमेंट डे मनाया गया था. और 2020 का जो हमारा थीम है
वह है सेलिब्रेट विथ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के साथ इस अवसर का मनाना। यानी यदि आप याद करते हैं कि द थीम ऑफ 2020 ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज बायोडाइवर्सिटी, दिस इज करेक्ट, ये इतने काफ़ी है। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट आउट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लाइक दैट, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलेंट situations due to the COVID-19 pandemic, the ministry will be and is also holding the virtual celebrations of World Environment Day on this year's theme with the focus of Nagar Van. Nagar Van mean to say urban forest. Is it okay? यानी शहरों में ही सबसे ज़्यादा पौधारोपण, वन संपदा को कैसे निर्माण किया जा सके जिससे कि वहाँ की वायुमंडल, वहाँ की वातावरण शुद्ध बनाया जा सके। बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू एनालाइज अबाउट सेवरल सीरियस डिजीजेज इन द कंट्री, all diseases can be produced from urban areas, not in rural areas, because in rural areas pure water, pure air, pure each and everything we can get. But whenever we are going to distinguish in the urban areas, each and everything is poisonous due to pollution, industrialization, and several misconduct of the peoples and misunderstanding of the people can be also occurred. इसके साथ हो रही है। Some points you must remember about that. India, though having less land mass and more human and cattle population, has nearly 8% of the biodiversity. आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी की 8% हमारे देश की, भारत की, हम कह सकते हैं इंडिया की, क्योंकि हमारे पास लैंड लेस हैं, कम है, ह्यूमन लैंड हमारे पास लेस हैं, लेकिन मानव तथा जानवर की जो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें हमारा बायोडाइवर्सिटी 8% अपने कंट्रीब्यूशन करती है। इट्स वेरी इमेजिनरी फॉर ऑल ऑफ यू दैट, वेरी सॉरी टू से दैट ओनली 8% बाई विच वी ऑल आर सर्वाइविंग। और 8% में यदि मान लिया जाए कि 10% हो जाए या 100% हो जाए, इट इज़ वेरी इमेजिन दैट ईच एंड एवरी पीपल विल बी हेल्दी। हर लोग जो होंगे वो स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, किसी भी प्रकार की जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की जो कमियां होगा उसका नहीं होगा। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल माय डियर गाइज, इट विल बी पॉसिबल इफ वी आर पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी आर पॉसिबल। यदि हर चीज़ संभव होगा यदि हम उसे संभव बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इट कांट बी डिटरमाइंड, अन्यथा ये कुछ होने वाला नहीं है। एज पर द रिपोर्ट वी कैन से द कंट्री इज एंडोड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता है। हैविंग सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसा कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति प्रजाति के जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। एंड होस्ट 4 ऑफ द 35 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, विश्व के जो 35 बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता है, उनमें से 4 बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे भारत में पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। और भारतीय बायोडाइवर्सिटी से जैव विविधता पे हमें गर्व होनी चाहिए कि विश्व के 35 बायोडाइवर्सिटी में से जैव विविधता में 4 जो हमारी जैव विविधता वो भारत में ही पाए जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हॉट स्पॉट्स कंटेनिंग सेवरल एंडेमिक स्पेसीज, जो जिनमें से ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर एंडेमिक स्पेसीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। दिस इज वेरी प्राउडेबल, applaudable, commendable parts by which we can imagine, we can be aware that what our future expect from it. So this type of point has been occurred, published from
this report. Now dear guys, the urban forest will help in creating and enhancing the lung capacities of these cities. That's why this manifesto has been organized by 2020 World Environment Day, that the environment of the urban areas, the atmosphere of the urban areas got completely collapsed, injurious to health, not only for people but also all of the living beings and non-living beings too, we can say. So whenever we are talking about the lung capacities, it means to say it is directly proportional to match with breath. ये हमारी सांसों से बिलोंग कर जाता है. How we can get 100% pure oxygen, by which we can stable ourselves, and we can also expect to give and provide to our futures. This is very important to ponder now, because अभी नहीं सोचेंगे तो कभी भी नहीं सोच पाएंगे. That's why we can say it is the point, it is a time that we must understand each and everything, analyze each and everything, that what is happening with our nature, what is happening in the world, and which types of action we must take against the nature what we all are spoiling. तो अभी हमें प्रकृति को ये सौंदर्य बनाना है, ना कि इसे बर्बाद करना है. My dear guys, the Vajre urban forest, you know, the Vajre urban forest is now a role model for all of the rest of the countries. पूरे दुनिया में जितने भी हैं, पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में बना है, तो वह है वाजरे अर्बन फॉरेस्ट. ये पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है. इट मीन टू से वाजरे अर्बन फॉरेस्ट टीच अ लेसन that world must learn from this. The interpretations, how to protect, how to save, what is the consumptions, as per the limit, as per the need we must use. But here more than required, people are obliging to follow, people are obliging to, what we can say, take. Where nothing can be consumed, this is the part of consumption, actually it can't be derived. So these types of challenges can be occurred before the people, and people are not aware about that, what will happen in future with our what we can say for father, yeah, what we can say for future comings, upcoming days. My dear guys, I am going to discuss about the background of World Environment Day. Actually, in 1972, the United Nations General Assembly established the World Environment Day. And after the decisions on the first day of the Stockholm Conference, we can say, on the human environment. Because in 1972, finally a Stockholm Conference was held. A long discussion, several opinions of the members countries give, and the point of that interpretations by which we can be aware and to know the role of the environment, this day was finally decided and opted for 5th June, that this day is very important to celebrate. And finally what happened? Since 1974, on 5th June, every year this day has been celebrating, और अंततः मनाते हम आ रहे हैं 5 जून से. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, यदि हम यूनाइटेड नेशन के विचार को लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन इसके बारे में क्या कहती है, मैं तो आपको एक लिखित कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो उस समय बात हुई थी. वह मैटर था, द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे प्रोवाइड्स अस, यानी इस दिन को जो हम सेलिब्रेशन मनाते हैं ये हमें देता है विथ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रोडन द बेसिस फॉर एन इनलाइटेंड ओपिनियन and responsible conduct by individuals, enterprises and
communities in preserving and enhancing the environment। और यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के सामने एक उन्होंने कह सकते हैं वक्तव्य रखा, एक स्टेटमेंट रखा कि यह डे जो हम इस दिवस को जो मनाते हैं, इस दिवस से बहुत सारी फ़ायदा है जो हमें देता है। जैसे ये हमें सबसे पहला तो होती है कि जो हमारी ओपिनियंस है, जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है या जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, इसको ले करके एक सही ट्रूफुल कह सकते हैं इनलाइटेंड ओपिनियन उन्होंने देने का काम किया और उन्हें बताया कि ईच एंड एवरी पीपल यानी इंडिविजुअल्स जो हैं इसके लिए कैसे जिम्मेवार हैं। उस चीज़ों को उन्होंने बनाया, इंटरप्राइजेस को भी जोड़ा, उन्होंने कम्युनिटीज़ को भी जोड़ा और उन्हें बताने की कोशिश की कैसे हम अवेयर हो सकते हैं और कैसे इसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले अपकमिंग डेज में इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दैट्स वाई देयर इज़ अ क्वेश्चन इन माई माइंड दैट वाई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब हमारे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय या विश्व इन्वायरमेंट डे ही क्यों, जब हर देशों को अपना अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर लोगों को अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वन संपदा, तालाब, जल इत्यादि सारे चीज़ों को जब उन्हें सुरक्षित करने के लिए सभी की अपनी जिम्मेवारी है, तो आखिर समस्या है कि आखिर वर्ल्ड डे ही क्यों। ये तो समस्या अपने आप में है। तो माय डियर गाइज, इन एज पर माय टेक, जो मेरे स्टेटमेंट में आ सकता है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक्चुअली द फूड वी ईट या द फूड वी टेक, द एयर वी ब्रेथ एंड द वाटर वी ड्रिंक और टेक या हैव, एंड द क्लाइमेट दैट मेक्स आवर प्लानेट हैबिटेबल, ऑल कम फ्रॉम नेचर। आपको पता ही है कि जो हम हवा लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे हमारे कहीं न कहीं वैसे जलवायु का भाग हैं, वैसे क्लाइमेट का ये पार्ट हैं जो हमें एक प्लानेट हैबिटेबल को देता है, जहाँ पर और जो हमें एक प्रकृति के तहत मिलता है, विच कांट बी प्रोड्यूस्ड, वी कैन ओनली प्रोटेक्ट अस, जिसको हम कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं, इसको संरक्षण जरूर दे सकते हैं। एंड दिस इज वेरी अपॉर्चुन टाइम दैट वी ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस डे, मस्ट बी अवेयर एंड टू स्प्रेड द अवेयरनेस among the people those who are spoiling and devastating these types of interpretations of our natural resources, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन को एक कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में जो गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक बहुत सुनिश्चित समय है कि हमें उनके अवेयर करना है, उनको इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में हमें लोगों को समझाना चाहिए। माय डियर गाइस, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, फॉर एन इंस्टेंस दैट ईच ईयर मैरीन प्लांट्स प्रोड्यूस मोर देन अ हाफ ऑफ आवर एटमॉस्फेयर्स ऑक्सीजन। एक रिसर्च के आधार पर एक डेटा आया है कि प्रत्येक साल यदि देखा जाए तो जो मेरीन हमारे प्लांट्स हैं, मेरीन समझते हैं ना, समुद्री प्लांट्स जो हैं, ठीक है, तो जो हमारे समुद्री प्लांट हैं वह हमारे जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को आधा से ज़्यादा वो अकेले प्रोड्यूस करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब समुद्री, जैसा कि हमें पता है कि 1/3, तो जब समुद्री इलाका में जो हमारे पास प्लांट्स हैं, मेरीन जो हमारे प्लांट्स हैं, वो जब हमारे मोर देन हाफ ऑक्सीजन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर जब वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे जब इतनी जीवन यापन हो सकता है, तो मायने सी बात है कि फ्यूचर बचाने के लिए हमें तो और कुछ करना होगा ना। तो यह बहुत बड़ी अपने आप में क्वेश्चंस हैं और दिस क्वेश्चन मस्ट बी हॉन्टेड इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में बार बार हॉन्ट होना चाहिए दैट कि हम किस तरह के स्टेप्स लें, आइदर डिसिप्लिन और मॉडरेट, बाय विच वी कैन protect and we can also contribute about the protections of these plants and natural reserve for fauna and flora। तो फ्लोरा और फौना को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या उठाने चाहिए कदम, ये सारे पे हमें बात करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए।
एंड मैच्योर ट्री क्लीन्स आवर एयर, और जो उस तरह के मैच्योर्ड पौधे हो जाते हैं, जो बड़े पौधे हो जाते हैं, वो हमारे हवा को भी क्लीन करता है, ठीक है, ऑब्जॉर्बिंग 22 किलोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो आपको पता होनी चाहिए कि वो 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे नेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी प्रकृति को, हमारे वातावरण को साफ कर देता है। अब वो सोचने वाली मेरे भाई बात है कि मैं एक कदम क्यों न उठाऊं। यदि आज से हमें अपने आप को अवेयर नहीं होते हैं तो सोचना होगा कि इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए तथा आने वाले भविष्य के लिए वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल, कि हम ही जिम्मेवार होंगे। एंड सेवरल क्वेश्चन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अस दैट व्हाट डिड यू, आपने क्या किया मेरे लिए। तो उस तरह के जो हमारे पास पौधे होते हैं वह 22 केजी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का होता है उसको कंज्यूम कर एब्जॉर्ब कर जाता है, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन एक्सचेंज, उसको बदल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है। दिस इज आवर स्पिरिट एंड बॉर्न ऑफ आवर लाइफ, जिसके द्वारा हमारा जीवन मरण सेवरल एक्टिविटीज होते हैं। माय डियर गाइस, डिस्पाइट ऑल द बेनिफिट्स, ये सारे के सारे बेनिफिट्स के बावजूद हम कह सकते हैं कि आवर नेचर गिव अस एंड वी स्टिल मिसट्रीट इट। इतने सारे कार्यों को बदतमीजी के साथ गलत करते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर के साथ, नेचर के साथ, उसके बावजूद भी प्रकृति हमारे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं जल्दी करती, बल्कि वो हमें इतनी सारे बेनिफिट्स देती है, उसके बावजूद भी हम उनके साथ मिसट्रीट करते आ रहे हैं, मिसबिहेव करते आ रहे हैं। दैट्स वाई वी नीड टू वर्क ऑन दैट, इसलिए अभी हमें ज़रूरत है कि हम उस पर काम करें। दैट इज़ वाई वी नीड दिस ऑब्जर्वेंस, और हमें ज़रूरत है कि मैं उस पर ऑब्जर्वेंस करें। और जाते जाते मैं आपको 2-3 चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि 2000, सबसे पहले आप 2-4 क्वेश्चंस और याद कर लें। जैसे 2019 में इन 2019 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन चाइना। 2019 में ये चाइना में सेलिब्रेट किया गया था, और उस समय जो इसका थीम था वह था बीट एयर पोल्यूशन, कि वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सके, उसको कैसे हराया जा सके। दिस वाज द थीम इन 2019, बट इन 2020 में जो अभी हमारे यहाँ मेरे विश्व में जो मनाया जा रहा है, एक्चुअली इट इज़ सेलिब्रेटिंग होस्टिंग इन कोलंबिया। अभी जो इस साल की सेलिब्रेशन हो रही है कोलंबिया में सेलिब्रेट हो रही है, एंड दिस इवेंट इन द कोलाबोरेशंस ऑफ विथ जर्मनी। और अभी जो हो रहा है ये जर्मनी के कोलाबोरेशन के साथ कोलंबिया में हो रहा है। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये एक के लिए नहीं बल्कि हर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट, मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगा एक दोस्त के नाते, और शुद्ध हिंदी में हमारी है। सबसे पहला, मैं ज़्यादा नहीं 4-5-6 यही लगभग हमारी सजेशन होगी। सबसे पहला सजेशन होगी कि साल में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, और उस पौधा को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए हर प्रकार के कार्य करें, तथा पेड़ पौधों के संरक्षण के सहयोग में अपना बहुमूल्य जो कर्तव्य आपकी होती है उस कर्तव्य की निष्ठावान होते हुए आप उसे परिपूर्ण कर सकें। दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास तालाब है, नदी है, पोखर है, ये सारे को प्रदूषित होने से बचाएं, जल का दुरुपयोग होने से बचाएं। इसका इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल कितना हमारे भविष्य के लिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस शिक्षा को लोगों के बीच में देने का कष्ट करें, तथा जल का दुरुपयोग न हो, जैसे जल का इस्तेमाल हो गया तो नल को बंद कर दें, व्यर्थ पानी न बहने दें। ये आपके लिए एक केवल मानव मात्र सेवा नहीं होगा, बल्कि यह प्रकृति मात्र भी आपकी सेवा हो सकती है। तीसरी क्या हुई कि बिजली
तो आपको पता है कि बिजली का भी इस्तेमाल हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को जला करके की जाती है। तो हमें अनावश्यक इस्तेमाल से बचना है। जब तक इस्तेमाल करनी है, जब हम यूज़ हमें ऐसा महसूस होता है कि इसका यूज़ है, तो आप बिजली का इस्तेमाल करें, अन्यथा इसकी अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। और आफ्टर यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी यू मस्ट स्विच ऑफ योर फैन, टीवी एंड डिफरेंट मैकेनिज्म्स। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आपके पास चीज़ें हैं, वे सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यदि इस्तेमाल नहीं तो उसे आप बंद कर दें, जिससे कि बिजली का बचत किया जा सकता है। नेक्स्ट, कूड़ा कचरा को ऑलवेज डस्ट में डालें और दूसरों को इसके लिए अवेयर भी करें, क्योंकि इससे भिन्न भिन्न प्रकार की रोग फैलती है। इन्वायरमेंट साफ नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा, रोग फैलेंगे, बीमारी होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होंगे। ऐसा नहीं बोलना कि मैं कचरा वाली हूँ, मैं कचरा करती हूँ, ये विचारों से दूर रहें। बल्कि कचरा वाली हूँ लेकिन कचरा फेंकती हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। प्लास्टिक और जो पॉलीथीन से निर्मित जितने भी प्रकार के आप कह सकते हैं थैला है, बैग हैं, ये सारे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। इसके बदले में कपड़े का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, कागज़ का इस्तेमाल करें। दिस विल वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेचर, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, जो हमारे प्रकृति, जलवायु, वातावरण इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी जो हमारी तरफ से होगी वह, जैसा कि भी हमने देखा है कि केरला में क्या घटना घटा, मतलब जिस तरह से मानव के साथ हमारी प्रेम होती है। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, हम भी एक जानवर ही हैं। अंतर इतना ही कि हमें बोलने, समझने, सुनने की शक्ति होती है, और क्वाड्रप्ट जो एनिमल होते हैं उसमें समझने की क्षमता नहीं होता। इसलिए पशु, पक्षी इत्यादि के प्रति भी हमें दया भाव हमेशा बहाते रहना चाहिए, दया भाव उनके लिए भी रखना चाहिए। और कोशिश करना है कि जो भी जितने भी हमारे पास नज़दीकी चीज़ें हैं या नज़दीक के जो भी कार्यकलाप हैं, उसे हम मोटर वाहन से इस्तेमाल ना करके बल्कि साइकिल का प्रयोग करें, पैदल सेवा इस्तेमाल करो। तो दीज आर माई सजेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, that whenever we are taking the steps, we are taking the disciplined steps to make the reform, to improve the stability of these types of consequences. My dear guys, you must remember and accept it that it will suddenly change and transform in our nature, atmosphere, climate. What we expect, we can get more and more from this natural gift. तो इस प्रकृति से हम जितना डिमांड करते हैं उससे हो सकता है कई गुना ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। ऑल द बेस्ट। और आप लोग से अगला जो हमारी कुछ ऐसी इसी तरह कुछ वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।